Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today we are going to continue with the previous lesson that we discussed in the previous video. It's lesson number 3 from your English course book, A Popular President. So we have done the first half. Now today we are going to go with the second half. Firstly, I will do the reading of the lesson and then I will explain its meaning. The family awoke to see the wrath of nature. All their boats had been destroyed, which meant that there would be no income until they could build and buy new ones. Abdul understood the need of the hour and decided to help earn money to support the family. He began to collect tamarind seeds after school, for which he earned 1 anna, 1/16th of a rupee. After 7 days, he took the week's earning and gave them to his father. Abdul also supported his cousin Shamsuddin, who had an agency for selling the newspaper Dinman. Can I help you in any way? He asked Shamsuddin. Abdul would collect the newspapers from the railway platform, sort them, and then hand them over to his cousin. Abdul was happy that he was able to contribute to the family income in its time of need. This is an anecdote from the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam, who passed away on 27 July 2015. So we had discussed that the place where APJ Abdul Kalam was born and how he was as a boy, and how he became the 11th president of the country, and he also was one of the greatest scientists of India. And we discussed that how his family used to earn money. His father was a fisherman, and he also used to build or make boats. So one day what happened, they were just at the beach that of the Rameswaram, they were struck by the wind, by a storm. So the family awoke to see the wrath of nature. So when they woke up the next day, they could see the anger of the nature. They could see the anger. जब वो अगले दिन उठे, जब तूफान आया तो उसके अगले दिन जब वो उठे तो वो देख सकते थे कुदरत का कहर या कुदरत का जो गुस्सा था वो देख सकते थे तूफान की शक्ल में. All their boats had been destroyed, which meant that there would be no income until they could build or buy new ones. So उनकी जितनी भी boats थी, because उनका यही पेशा था, यही काम था कि वो एक तो उनके पापा जो थे वो फिशरमैन थे, एंड वो बोट्स बनाया करते थे. तो इस तूफ़ान की वजह से इनकी तमाम जो कश्तियाँ थी वो टूट गई थी, वो बर्बाद हो गई थी. सो इनको ये समझ आ गया था कि अभी इनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कमाने का. लाइक इनकी जो कमाई है, इनकी जो आमदनी है वो अभी कुछ नहीं आ सकती है, क्योंकि इनकी जो आमदनी आती थी, जो भी ये पैसे कमा पा रहे थे, वो इन बोट्स की वजह से थे. क्योंकि लोग लोगों को कैरी करते थे उन बोट्स में, बिकॉज़ वैसा एक फेस्टिवल उस एरिया में चल रहा था. तो जब इन्होंने देखा कि इनकी बोट्स जो है वो बर्बाद हो गई है, वो तबाह हो गई है, तो ये समझ गए कि अभी इनके पास कोई ऐसी इनकम का कोई सोर्स नहीं है तब तक, जब तक नहीं ये या तो नई जो बोट्स हैं उनको बनाएंगे या तो खरीदेंगे. Abdul understood the need of the hour and decided to help earn money to support the फैमिली. सो जो अब्दुल था, द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो समझ गए कि उनको वो समझ गए उस वक्त, उनको उस वक्त का अभी वो एहसास हो गया उनको कि उनको कितनी पैसों की ज़रूरत है. वो समझ गए कि इनके पास अभी ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है, इनके पास पैसे नहीं हैं. तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये अभी कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे. ही बिगैन टू कलेक्ट tamarind सीड्स आफ्टर स्कूल, फॉर विच ही अर्नड 1 anna, दैट्स 1/16th of a rupee. सो अभी ये क्या करने लगे कि जब ये स्कूल इनका फिनिश हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो ये जो इमली होती है, tamarind हम इमली को कहते हैं, तो उसके जो बीज होते हैं उनको कलेक्ट करने लगे. एंड उनको एक टैमरिंड सीड का जो है, इनको कलेक्ट करके इनको 1 आना मिलता था.
जो कि 1/16 होता है 1 रुपए का। सो आफ्टर 7 days ही टुक द वीक्स अर्निंग एंड गिव देम टू हिज फादर। तो इस तरह से इन्होंने 7 दिन ऐसे ही किया कि इमली के जो बीज है उनको वो पहले तो कलेक्ट करते थे और फिर उनको बेच देते थे और उसके उनको पैसे मिलते थे। तो जो 7 दिनों में इनको जितने भी पैसे उसके मिले तो उन्होंने वो अपने बाप को दिए। अब्दुल आल्सो सपोर्टेड हिज कज़िन शमसुद्दीन। तो इन्होंने अपने जो इनके कज़िन थे उनकी भी हेल्प की, जिनका नाम शमसुद्दीन था। हु हैड एन एजेंसी फॉर सेलिंग द न्यूज़पेपर, जिनकी एक अपनी एजेंसी थी, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक काम ऐसे एक सर्विस करते थे वो, कि वो एक न्यूज़पेपर बेचते थे, एक अखबार बेचते थे जिसका नाम दिनमान था। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? तो इन्होंने अपने कज़िन शमसुद्दीन से कहा कि क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ। Abdul would collect the newspaper from the railway platform, sort them and then hand them over to his cousin. So what he used to do was कि वो रेलवे स्टेशन जाके वहाँ पे पहले तो अखबार जो है वहाँ से लाते थे, कलेक्ट करते थे, उसके बाद उनको छांटते थे, सॉर्ट करते थे एंड एक अरेंज करते थे एक ऑर्डर में। एंड आफ्टर दैट वो अपने कज़न जो इनके थे शमसुद्दीन, उनको वो दे देते थे। अब्दुल वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम एट इन इट्स टाइम ऑफ नीड। तो अब्दुल क्योंकि अभी इनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी एंड ये कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे अपनी फैमिली की कहीं ना कहीं से हेल्प कर पा रहे थे, तो ये इस चीज़ से बहुत खुश थे कि वो इतनी छोटी उम्र में होके भी अपनी फैमिली के किसी काम आ रहा है, उनकी हेल्प कर पा रहा है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। This is an anecdote from the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam, who passed away on 27 July 2015. So this is just a small story. This is a small interesting story of Dr. APJ Abdul Kalam. ये सिर्फ एक किस्सा है उनके बचपन का कि हाउ ही वॉज एज अ बॉय, कि वो किस तरह के इंसान थे जब वो छोटे थे। तो ये एक छोटा सा किस्सा है उनकी ज़िंदगी के रिलेटेड जब ये बहुत छोटे थे। एंड उनकी डेथ जो है वो 27 जुलाई 2015 में हुई। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।